क्या हालचाल बच्चा लोग, कैसे आप लोग, कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। तो हम लोग लेके आए हैं एनिमल किंगडम का पार्ट 4। तो आज हम लोग देखेंगे आर्थ्रोपोडा से, राइट? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? आर्थ्रोपोडा से। आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा एकदम फास्ट से, the level of organization will be the organ system type, right? What about the body symmetry? The body is bilaterally symmetrical. Okay, what about the germ layer? The germ layer will be triploblastic and it is a coelomate. Clear? Okay, and ये terrestrial and aquatic both ही होता है। क्लियर? सो दीज आर द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स और द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे हम लोग नॉर्मली क्लासिफिकेशन करते हैं एक एक फाइलम का, राइट? अगर हम लोग स्पेशल फीचर्स में जाएंगे तो स्पेशल फीचर्स में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे? इसका नाम अगर देखेंगे आर्थ्रोस एंड पोडोस, ये दोनों मिला के होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोस मतलब क्या है? आर्थ्रोस मतलब है जॉइंट एंड पोडोस मतलब एपेंडेजेस, राइट? तो इफ वी लुक इनटू द लेग्स, कैसा होता है? अगर कॉकरोच का ही देखेंगे तो लेग देख के क्या लग रहा है? एक एक सेपरेट पार्ट्स जॉइंटेड है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जॉइंट एपेंडेजेस। एपेंडेजेस मतलब लिम्ब, राइट? एंड द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, राइट? तीनों पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्लियर? ओके, इफ वी टॉक अबाउट द आईज, इट हैज बोथ सिंपल एंड compound eyes, right? What about the excretory system? The excretory system is known as, or the excretory organ, Malpighian tubules, and इन लोगों का बॉडी में एक पर्टिकुलर बैलेंसिंग ऑर्गन होता है जिसका नाम क्या होता है? स्टैटोसिस्ट, right? The statocyst is the balancing organ. If we talk about the respiratory organs are of several types like gill, book gill, book lung and ट्रैकिया। गिल किस में रहते हैं? नॉर्मल क्रैब में। बुक गिल किस में रहता है? लिम्यूलस, राइट? लिम्यूलस को क्या बोलते हैं? लिम्यूलस इज नोन एज
living fossils, right? Book lung, scorpion, spider, and the trachea is present in cockroach, right? इन लोगों का बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इट हैज अ open circulatory system, right? It has the open circulatory system. What do you mean by open circulatory system? The body fluid that is known as hemolymph, the body fluid is not enclosed in particular any kinds of vessels. Body fluid कोई भी vessels में enclosed नहीं है, open है, right? The body cavity is flooded by the body fluid. That's why it is called the open circulatory system, right? So these are all about the special features of the arthropoda, right? If we talk about the example, this is called locusta or locust. इसमें NCERT में क्या लिखा हुआ है? Gregarious pest, right? Gregarious pest. This is all of the scorpion and butterfly and prawn. इसको छोड़ के भी बहुत सारा मैक्सिमम, मतलब अगर हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द आर्थ्रोपोडा इज कॉल्ड द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, राइट? Two-thirds animals belongs to this phylum. Clear? This is all about the arthropoda. Arthropoda के बाद कौन सा आ रहा है? The next one is the mollusca, and the mollusca is second largest phylum. Got it? What will be the level of organization? Same. Organ system level of organization. Body symmetry will be bilateral, germ layer, that is also triploblastic. Clear? It will be the coelomate because it has the body cavity, that is coelom, habitat both terrestrial and aquatic, right? Next, these are the basic characteristics. Clear? इसके बाद अगर हम लोग स्पेशल फीचर में जाएंगे तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर. वी विल लुक इनटू द इंटरनल स्ट्रक्चर of a particular snail. तो snail का internal structure, snail is basically one of the animals in the mollusca. तो body क्या होता है, ये बहुत important और बहुत लोग गलती करके आते हैं. That is unsegmented body. MCQ में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि unsegmented, देख के लगता है कि segmented body, but that is unsegmented. क्या क्या? This portion is known as head, right? This is visceral hump and this is the muscular foot, that is the locomotory organ. Clear? Here is the tentacles, right? These are the सेंसरी पार्ट, राइट? एकदम विजुअल हम्प पे जो ऊपर में जो सेल दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द
mantle, and this cavity is known as mantle cavity. अगर हम लोग माउथ में देखेंगे, दिस इज द माउथ, तो माउथ में क्या देखेंगे, यहां पर होता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन. फाइल लाइक रेस्पिंग मतलब फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए. फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसका नाम क्या है, रेड्यूला. राइट, रेड्यूला. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स. क्लियर. इसके बाद दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. एंड यहां पर क्या होता है, एकदम इन द पोस्टीरियर, एकदम पीछे वाला रीजन में, जस्ट बिलो द मेंटल कैविटी, देयर इज द feather like gill for respiration. The feather like gill for respiration. यहां पे और एक चीज लिख लो कि यहां पे क्या होता है, osphradium for, this is for the excretion. osphradium बोल के एक ऑर्गन रहता है, this is for the excretion and osmoregulation. Clear? So this is all about the structural features of a mollusca. और मोलस्का में क्या क्या एनिमल होता है लास्ट में, ये तो सब लोग ही जानते हो, क्या है, पाइला और एप्पल स्नेल. एंड दिस इज ऑक्टोपस. इसको छोड़ के सीपिया, लॉलीगो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब वैरायटीज ऑफ. यहाँ पे एग्जांपल है, एनसीईआरटी के एग्जांपल बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से मान लो कि पर्टिकुलर फाइलम का नाम देके नहीं भी क्वेश्चन दे सकते, ओनली द एग्जांपल लेके ही क्वेश्चन दे सकते. तो एग्जांपल एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. राइट. नेक्स्ट हम लोग जिसमें आ रहा है आज का लास्ट टॉपिक, मतलब आज का लास्ट डिस्कशन की पार्ट, दैट इज कॉल्ड द एकाइनोडर्माटा. तो एकाइनोडर्माटा में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी द ऑर्गन सिस्टम टाइप, बॉडी सिमेट्री, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है. बॉडी सिमेट्री इन द लार्वा, body symmetry in the larva are bilateral, but in case of adult animal these are radial. Right. If we talk about the germ layer, it is the same as like the before, triploblastic in nature. Coelom is the coelomate and habitat mostly. Echinoderm are aquatic in nature. Clear? These are the basic features. If we talk about the special features, echinoderm right, it is a structure of the starfish. मान लो तो starfish में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5. फर्स्ट पॉइंट दैट इज पेंटामेरिक आर्म, और आर्म के ऊपर छोटा छोटा ऐसे क्या रहता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दैट इज द गिल. और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इन दिस पर्टिकुलर फाइलम, मतलब एकाइनोडर्माटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट. राइट. नॉर्मली हम लोग क्या देखते, मतलब माउथ कहां देखते हैं, माउथ देखते हैं अपर पोर्शन में. राइट. इन लोगों का क्या होता है,
माउथ इज द लोअर, और लोअर को ही बोलते हैं इसमें वेंट्रल रीजन, और एनस इज इन द अपर पार्ट, दैट इज द डोर्सल रीजन, राइट। यहाँ पे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं रहता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जगह उसका फंक्शन मतलब ऑस्मोरेगुलेशन बॉडीज में अंदर में मतलब वाटर एंट्री वाटर एग्जिट कैसे होगा, तो इसलिए इन लोगों का बॉडी में एक पर्टिकुलर सिस्टम रहता है दैट इज कॉल्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम सब कुछ करते हैं, मतलब ऑस्मोरेगुलेशन, डाइजेशन, सब कुछ, वाटर एंट्री एंड एग्जिट, all the function is done by water vascular system, because in here excretory system is absent, right? Reproduction, यहाँ पे क्या होता है, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट एनिमल्स, राइट। तो अगर मेल एंड फीमेल सेपरेट होगा तो रिप्रोडक्शन विल बी sexual and development will be indirect with free, the development will be indirect with free swimming larva, right? This is all about the Echinodermata. Echinodermata में देखोगे Asterias, this is a starfish, and Ophiura, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रिटल स्टार, राइट। इसको छोड़ के भी और भी है, मतलब सी क्यूकम्बर, कुकुमरिया, बहुत सारा ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं जो नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, एकाइनोडर्म्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय एन एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल नहीं है। थर्ड में यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है नॉर्मली, मैंने नहीं लिखा उधर। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ फ्री स्विमिंग लार्वा, बिल्कुल सही। बाइसेक्सुअल, ये क्या बाइसेक्सुअल है, हम लोग क्या देखे, मेल एंड फीमेल आर द सेपरेट, तो बाइसेक्सुअल नहीं होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। तो नॉट कैरेक्टराइज, पहले जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना पहले नोट डाउन कर लेना क्या बोला है, ये नॉट हम लोग को बहुत बार मिस हो जाता है। तो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। आई होप क्लियर। नेक्स्ट में व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर अ जनरलाइज्ड मोलस्क, क्या बोला है, कौन सा पोर्शन में हम लोग मेजर फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ट्रू बोला है, मतलब जो सच नहीं है, और जनरलाइज्ड मोलस्क बोला है। तो इफ इट इज रिटन द जनरलाइज्ड मोलस्क, उसका मतलब क्या है, जनरल में, मतलब मोलस्क में क्या होता है, राइट। क्या लिखा हुआ है लास्ट से स्टार्ट कर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नेफ्रीडिया, ठीक है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नेफ्रीडिया भी है, और नेफ्रीडिया के साथ साथ हम लोग ऑस्मोरेगुलेशन के लिए ऑस्फेडियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेफ्रीडिया भी चलेगा, राइट। सी मेंटल कैविटी विथ गिल्स, ठीक है, ये भी ठीक है, नॉट करेक्ट। रेस्पिंग टंग लाइक ऑर्गन, रेडुला, रेडुला भी है, लेकिन बॉडी सेगमेंटेड, बॉडी क्या सेगमेंटेड है, पहले ही लिख दिया था कि बॉडी तो सेगमेंटेड नहीं है, बॉडी तो अनसेगमेंटेड है, राइट। तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बॉडी अनसेगमेंटेड है, इधर लिखा हुआ है बॉडी सेगमेंटेड। नेक्स्ट क्या बोला, which of the following features is not present in the phylum Arthropoda, आर्थ्रोपोडा में क्या नहीं है, राइट, नॉट प्रेजेंट, फिर से नॉट प्रेजेंट, प्लीज फोकस ऑन द नॉट।
जॉइंट एपेंडेजेस ऑप्शन सी है। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन जो मैंने नहीं बोला था, हाँ ये पर पॉइंट लिख के रख देना। कॉकरोच का भी अगर देखोगे तो यहाँ पे होता है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये एक्सोस्केलेटन काइटिनियस। लेकिन पैरापोडिया, पैरापोडिया हम लोग कहाँ देखे थे? पैरापोडिया हम लोग देखे थे, ये देखे थे हम लोग नेरिस में, एंड नेरिस वाज द एनालिड्स। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा? आर्थ्रोपोडा का फीचर नहीं है। ऑब्वियसली दिस विल बी द आंसर। देखेंगे नहीं, मेरामेडिक सेगमेंटेशन तो होता ही है, लेकिन पैरापोडिया तो नेरिस में होता है, एनालिड्स में इसमें नहीं होता है, राइट? आई होप कि कोई डाउट नहीं है। आज बहुत ही इजी टॉपिक था, मतलब 3 फाइलम और एकदम मतलब जल्दी से ही हो जाएगा। बस मेरे साथ साथ तुम लोग रिवाइज करते करते जाओ, ठीक है? अभी देखो, आज तो एनडीए ने मतलब डिक्लेयर कर ही दिया कि 2024 में 5 में नीट होने वाला है, राइट? और एनटीए ही कर रहा है, क्योंकि प्लेस रिलीज तो मतलब एनटीए ने ही किया। तो बाकी तो देखो, बहुत दिन तो बाकी नहीं है हम लोगों के पास, और तुम लोग बस अभी रिवाइज करते हुए जाओ, राइट? तो एनिमल किंगडम देखो, एनिमल किंगडम मतलब लग सकता है कि इतना सारा एग्जांपल कैसे होगा, इतना सारा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो, और मैं जैसे बोल रहा हूँ पॉइंट वाइज लिखो, खुद का नोट बनाओ। अगर शॉर्ट नोट बनाना ही है जो एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करना है, तो खुद का नोट बनाओ, ठीक है? किसी को मतलब वीडियो देख के मतलब लिख के पढ़ना, वैसा नहीं, खुद का नोट बनाओ। पहले देख लो, जो भी वीडियो देखना है देख लो, कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, या मतलब उसके बाद रट्टा मारना है, जो भी करना है कर लो, लेकिन खुद का नोट मतलब पूरा पेज, मानो 2 पेज में बना लो पूरा चैप्टर, एक एनिमल किंगडम पूरा 2 पेज में बना लो। इससे क्या होगा, इससे एग्जाम के पहले जब तुम देखने बैठोगे ना, पूरा बुक तो देखना, 2 दिन बाकी है एग्जाम, पूरा बुक देखना तो पॉसिबल नहीं है, तब सिर्फ वो 2 पेज में तुम्हारा सब कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा। वैसे कर लो, ठीक है? अच्छा, तो आज के लिए बाय। क्या आई होप कि मतलब सबको अच्छा ही लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मतलब हेमी कोऑर्डिनेट के बाद वो वर्टिब्रेट से स्टार्ट करेंगे, और 1-2 क्लास में मतलब पूरा एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा, राइट? ओके, तो आज के लिए बाय।